A very good morning to all of you. I, Preeti Singh from Seawoods Emerald Lions Club, is here again to discuss, or I would say to make you aware about a very important topic. And to discuss the same, I have a very renowned doctor, Dr. Rituparna Ghosh with us from Apollo, Navi Mumbai. And the topic is mental health and its well-being. We all face, once in life, we all face mental health challenges. Maybe because of our daily routines, our office hassles, and a lot more things. Some family issues, studying, many things goes in our mind. But we don't know how to face those challenges. And to throw the light, I have a doctor who helped everyone to get out of this challenge, to face this challenge. And today we begin with, thank you doctor for giving so very important time of yours. I know, you have been busy with the patients. Doctor, can you throw a little light on mental health, like what causes mental health and what is it all about? So, hello all of you. Thanks for choosing this topic, because I feel in today's world, though there's a lot of awareness that has come up, still when it comes to our mind, we have lot of stigma attached to it. कैसे होता है कि अगर हमें एक स्टमक पेन हो, एक हेडेक हो, हम इजीली फ़ोन रिसीवर उठा के डॉक्टर से पूछ लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू फीलिंग सैड, अपसेट, डिप्रेस्ड, बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होता है कि कैसे लोगों को बोलें. तो मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, और एक टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन वेलनेस के लिए दोनों का फंक्शनिंग एक साथ ठीक से होना माइंड और बॉडी का ज़रूरी है. सो मेंटल वेलनेस मीन्स हाउ मच गुड and the way you take care of your mind along with your body. Because if you are happy, you are stress free, you are disease free from your physical illness as well. And if you are disease free, if you are physically healthy, then automatically you are happy. So it's interconnected. So mental wellness या mind के related जो concerns हैं, उनको treat करना इतना ही important है जितना शारीरिक प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करते हैं. और ये मैं आप सबको बोलूँगी कि जितना इम्पोर्टेंस हम शरीर को देते हैं, प्लीज़ माइंड को भी उतना ही दीजिए. इसमें शर्माने का या एम्बैरेस्ड फील होने का कुछ भी नहीं है. हाँ, मतलब देखा है हम लोगों ने, लाइक वी सी समटाइम्स somebody is talking to us and suddenly he's lost. He's like, क्या हो गया, इसको शायद कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है, but we never know he's actually facing some challenge. So ये चीज़ें, and अभी especially in this COVID era, everyone is facing it. Being because, as I mentioned earlier, because kids are, especially the kids who are packed at home, उनको तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं. एज अ पेरेंट हमें लगता है अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, देखते हैं, बट उनकी फिजिकल हेल्थ भी हैम्पर हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ, बिकॉज दे गो आउट, दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स, दे आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्पेशली अ लॉट ऑफ जॉब्स हैव गॉन, पीपल आर फेसिंग सो मेनी स्ट्रेस. जॉब चली जाएगी, जॉब है नहीं है, फाइनेंशियल इशूज, एवरीबडी नीड्स दैट मी टाइम. और अभी कोविड ने मी टाइम नहीं दिया किसी को भी नहीं दिया. So all those causes a mental issue, and nobody likes talking about it, but I think yes, we should be talking about it. How can we take care of our physical health with our mental well-being? This is a very good statement that you made, that we need to give a lot of time to ourselves, me time, or investing in self-care. तो जैसे कि फिजिकल हेल्थ को हम देखभाल करेंगे, उसके लिए माइंड का पॉजिटिव होना, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. हम टाइम से सो रहे, खा रहे हैं, लेकिन माइंड से स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू इट. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, मेक सम मॉडिफिकेशंस इन आवर डेली रूटीन. टाइम से खाना, सोना, एक्सरसाइजेस करना. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमें तनाव महसूस हो रहा है, हमें घबराहट हो रही है, वी नीड टू शेयर इट. ये कहा जाता है कि हम जितना स्ट्रेस को इंटरनलाइज करेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए उतना बुरा है. हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा. जैसे छोटे बच्चे, आपने अभी बोला चिल्ड्रन के बारे में, तो पेरेंट्स का एक एटीट्यूड होता है, अरे बच्चे, इनको क्या डिप्रेशन हो रहा है. But we have kids coming to us in our practice wherein who are suffering from depression. 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, especially in this COVID era. तो बच्चों को बात करने दीजिए, उनको वो प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर पाए. जितना हम वर्बलाइज करेंगे अपने फीलिंग्स को,
उतना ही हम स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में योगा करना, वॉक पे जाना, हॉबीज़ करना। हम हर समय घर में, जब लॉकडाउन चालू था, हम बोलते थे कि दिस लॉकडाउन इज मेकिंग मी फील सो क्लॉस्ट्रोफोबिक, घबराहट सा हो रहा है, एकदम बहुत सफोकेशन हो रहा है। लेकिन ये कभी आपने सोचा कि ये लॉकडाउन की वजह से हमें कितना टाइम फैमिली के साथ बिताने को मिला, हॉबीज़ नर्चर करने को मिले। तो चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर हम देखेंगे और वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे, वन डे एट अ टाइम, automatically you will work on your mental positivity and that will lead to your physical wellness as well. थैंक यू डॉक्टर। सीरियसली कोविड ने हमें, मतलब अगर हम उसका नेगेटिव साइड देखें तो वी आर नॉट एबल टू गो आउट, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट वेरी राइटली सेड, द टाइम विद आवर फैमिली, स्पेशली विद आवर चिल्ड्रन एंड स्पेशली विद द वर्किंग पेरेंट्स, उनको वो टाइम मिला अपने बच्चों के साथ। एज अ पेरेंट आई हैव बीन आउट एवरी टाइम एंड आई यूज्ड टू गेट लाइक 1 or 2 hours with my daughter. But अभी with 1.5 years, I have spent time and that attachment, that things, पेरेंट्स के अटैचमेंट हमेशा रहता है, बट वो फीलिंग कि क्या कर रहा है बच्चे को, आप ग्रो करते हुए देखते हो, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो, उनकी बातें समझते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, डिप्रेशन, दैट डिप्रेशन वर्ड, can you just throw some light on this? क्योंकि उसको कहते हैं ये डिप्रेस है। Yes, this is a very good question for mental awareness. I would say thank you to you to incorporate this part as a question. डिप्रेशन, जिसको हम अवसाद बोलते हैं, बेसिकली हर एक इंसान जो दुखी है डिप्रेस्ड नहीं है। डिप्रेशन ना एक बहुत कॉमन वर्ड अभी हो गया है। थोड़ा भी कोई इंसान इज सैड और अपसेट, वी से अरे दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड। नो, सैडनेस एंड डिप्रेशन इज डिफरेंट। अगर यही सैडनेस 2 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, द पर्सन इज ऑलवेज क्राइंग, नॉट इंटरैक्टिंग विद अदर्स, इट इज़ हैम्परिंग हिज स्लीप, डेली लाइफ स्केड्यूल, एपेटाइट, he is feeling upset, he is unable to do activities for more than 7 days or 15 days, then that person might need some help to go to a psychologist or a psychiatrist and can be a reason that he or she may have depression. लेकिन जो बेसिक सैडनेस होती है, कोई भी रीज़न की वजह से उदास फील करना या अपसेट होना, हम तुरंत उसको डिप्रेशन का लेबल नहीं दे सकते हैं। डिप्रेशन इज़ अ परसिस्टेंट सैडनेस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तभी जाके उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं एज डिप्रेस्ड। बेसिक सैडनेस के लिए उस इंसान की बातें सुनना, टू जस्ट रेंडर अ हेल्पिंग हैंड, जस्ट बी अ गुड लिसनर, ताकि वो बात करे, उसको हम थोड़ा सा हेल्प करें, वुड बी इनफ फॉर दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ दैट सैडनेस। सो राइट, बिकॉज एवरीबडी सेज कि डिप्रेस है, वो डिप्रेशन वर्ड को उस ढंग से वो यूज़ कर देते हैं, बट एज यू राइटली मेंशन कि डिप्रेशन और सैडनेस 2 अलग चीज़ें हैं। सैडनेस जा सकती है इफ़ वी talk to the person, हम बात Yes, करें, and it's a short period of time it can happen. But when this sadness keeps on happening और reason के बिना भी वो आदमी sad है, upset है, बहुत मायूस feel कर रहा है for a long period of time, then the question of depression or feeling depressed comes, which needs treatment at times. So, doctor, कैसे पता चलेगा when it, so if we bifurcate in adults, in kids and in the teenage. So as I understood, और जितनी reading है उसमें 90% इससे adult, 90% of the population of adult every year they get hampered with the mental health, not depression but mental health. 49% is the teenagers and rest few 27% is the kids. Obviously that number has increased and this is every year. This number has increased because of the COVID situation randomly, मतलब बहुत ज़्यादा ही increase हो गया। So अगर हम इसको bifurcate, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सैड है या मेंटल इश्यूज हैं कि हमें अब डॉक्टर की या उससे बात करने की या वो चैलेंजेस है, बिकॉज हम लोग अपने काम में इतने बिजी हैं कि वी डोंट गेट टाइम एंड इट्स टू लेट। सो हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उस इंसान का जो डे टू डे शेड्यूल है उसको थोड़ा चेक करना। If a person who has been very happy-go-lucky, cheerful, suddenly becomes, very sad, upset, socially बहुत mix-up करता था, अचानक से withdraw कर रहा है, किसी से बात करना नहीं चाहता है, feels always low, is unable to focus, personal life में खुशी नहीं मिल रही है, काम करने में problems हो रहे हैं, तब आपको एक अलार्म बेल हो सकता है कि कुछ तो इश्यूज दिस पर्सन इज हैविंग, एंड इन दैट सिचुएशन फर्स्ट यू नीड टू टॉक टू दैट पर्सन।
हमें वो टाइम उस पर्सन को देना होगा सो दैट पर्सन गेट्स द प्लेटफॉर्म टू कम एंड वर्बलाइज हिज फीलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय हम नकार देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, अरे इसको तो आदत है सैड रहने की, ये मत करिए। देन देर आर पीपल हु से आउट ऑफ फीलिंग वेरी अपसेट एंड लो और स्ट्रेस्ड, डैट आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। हमें लगता है कभी कभी ये अटेंशन पाने के लिए ऐसे बोल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है। If the person says anything related to not living anymore or any such statements, please give emphasis to that. उससे बात करिए, उसके concerns को समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको लगता है कि he or she needs help, please contact a mental health professional in that situation. That's very important. So हमें भी टाइम निकाल के उस इंसान के mental health को अहमियत देनी पड़ेगी, तभी वो आदमी आपसे बात करेगा खुल के। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं उसके फिजिकल इश्यूज नहीं है, unnecessarily he is feeling upset or telling that he is sad and we'll ignore, that can lead to severe consequences in that person's life later. Yeah, so because phase of life जो change होती है from the kid then teenage, especially the teenage, क्योंकि उनका percentage ज़्यादा है of mental health, reason भी ये है कि उनके face बहुत जल्दी change होते Exactly, you are हैं। right. तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चों में लाइक अगर हम बोलें पढ़ाई में दे आर वीक, पेरेंट्स से हो गए वीक है, नहीं आ रहे मार्क्स, क्या ऐसा है कि इट कैन बी अ कॉज ऑफ अ मेंटल हेल्थ आल्सो, उसकी वजह से भी है या may or may May not not be, like you rightly said, teenage or adolescent जो stage होती है, that is a juncture wherein a child has a conflict in his or her identity. हम बोलते हैं कि adolescents जो होते हैं they are not a child, not yet an adult. कभी पेरेंट्स बोलते हैं आप बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, कभी बोलते हैं आप छोटे हो, अब बड़ों की तरह कैसे बिहेव करो। सो दे हैव कंटिन्यूअस दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कि व्हाट एम आई और हु एम आई। तो इन दैट केस उनमें वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए कि उनके एकेडमिक ग्रेड्स अचानक से बहुत स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस हो रहा है, पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। सो बच्चों के अंदर मतलब हमें कैसे, जैसे उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि क्या हो गया, बट कैन इट बी अ कॉज, मे बी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कोई इशू होगा, बट कैन बी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ऑल्सो, या क्योंकि प्रेशराइज करते हैं। मे और मे नॉट बी। बहुत समय बच्चे ऐसे ही आउट ऑफ मिसचिफ दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू फोकस, दैट इज़ नॉट अ वेरी सीवियर कंसर्न। अगर थोड़ा पेरेंटल केयर लिया जाए, उनको समझाया जाए, थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड। लेकिन अगर वो बच्चा एकदम फोकस नहीं कर पा रहा है, ग्रेड्स कंटिन्यूसली ईयर डाउन होते जा रहे हैं, he is focusing, he is more interested in other activities, he is not trying to interact with parents, spending a lot of time with peers, friends, आपको लग रहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिक्सअप कर रहा है जहाँ पे देयर कैन बी टीनेजर्स में, जब आप बोल रहे हो सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री हो सकती है, देयर कैन बी अदर रिलेशनशिप इश्यूज़, वो बहुत अवॉइडेंस बिहेवियर कर रहा है, ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताना चाहता, अकेले रह रहा है, दरवाज़ा बंद करके ज़्यादा टाइम बिता रहा है, then it can be a concern wherein you need to talk to your child first, explain him or her, try to know what is the concern. फिर अगर लगे बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो बहुत दिन से चल रहे हैं, then you need to consult a psychologist or a psychiatrist. डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि एज यू मेंशन अर्लियर कि सैड है, अकेले बैठा है, कुछ मतलब उसके रूटीन में चेंज आ गया है, देन वी कम टू नो और वी कैन थिंक कि ठीक है उसको मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, वी टॉक टू, बट नाउ लाइक क्या होता है, हमारे हाथ में दर्द है, वी गो टू अ डॉक्टर, हमारे सर में दर्द है, हम लोग मेडिसिन लेके उसको ठीक करते हैं, वी गो टू अ डॉक्टर। नाउ एंड एवरी टाइम वी थिंक कि हो सकता है थोड़ा दर्द हो रहा होगा, या फिर यू माइट हैव अ साइनस इशू, यू माइट हैव अ माइग्रेन, बट हमको कभी ये नहीं होता, मतलब हम सोचते भी नहीं हैं कि वो मेंटल हेल्थ का भी इशू हो सकता है। तो बॉडी में ऐसा कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं जिससे ऐसा लगे कि ये मेंटल, मतलब ये मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, रादर देन जस्ट अ स्मॉल हेडेक और मे बी अ माइग्रेन इशू, क्योंकि वहाँ तक जाके हम लोग रुक जाते हैं कि टेक अ माइग्रेन मेडिसिन। See, the thing is mental health or physical health, or what you are saying, is actually a part of your wellness, mental Right. wellness and physical wellness. लेकिन बहुत समय सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी देखा जाता है कि हेडेक है,
स्टमक इश्यूज हो रहे हैं बट फिजिकल रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, सो इट्स रूटेड आउट बाय द फिजिशियंस की कुछ इश्यूज नहीं है। बहुत समय स्ट्रेस की वजह से हेडेक्स हो सकते हैं, अलग अलग फिजिकल मैनिफेस्टेशंस बॉडी में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नींद के इश्यूज हो सकते हैं। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट फॉर सम थेरेपी, सम काउंसलिंग दैट विल रियली हेल्प। और अगर स्ट्रेस की वजह से वो इंसान डे टू डे लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो कुछ माइल्ड मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर स्ट्रेस उस लेवल तक जाए जहाँ पे वो पर्सन बहुत एंशियस फील कर रहा है, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं बट हेडेक का कोई फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं है, या स्टमक अपसेट है बट उसका कोई फिजियोलॉजिकल कॉज या फिजिकल एग्जामिनेशंस में सब कुछ नॉर्मल है, देयर कैन बी एन अंडरलाइंग स्ट्रेस फैक्टर और एनी मेंटल डिस्ट्रेस दैट इज लीडिंग टू इट। सो इन दैट केस यू नीड द हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ओके, सो डॉक्टर, हम लोगों को फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ फीवर, वी से 3 days में क्योर होगा या एक हफ्ते में क्योर हो जाता है, वी गिव मेडिसिन, बीइंग इट वी टेक अ पैरासीटामोल बिकॉज वी नो कि ये मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन जो भी हमें रिकमेंडेड होती है हम घर में ले लेते हैं पहले, देन वी गो टू अ डॉक्टर। इन द सेम केस व्हेन इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, हम लोग बात जब हमें समझ आता है ओके द पर्सन इज फेसिंग इट, वी दैट चैलेंज, वी आर टॉकिंग टू हिम, तो कितने टाइम तक हम खुद उसको काउंसल करें, और मतलब व्हेन इट इज़ कि नाउ वी शुड गो टू अ डॉक्टर। राइट, सो इनिशियली व्हाट हैपेंस बेसिकली कि अगर हमें लगे कि कुछ इश्यूज हमारे फैमिली मेम्बर पे या किसी बच्चे पे या जो हमारे फैमिली मेम्बर से किसी को हो रहा है, हमें पहले उनके साथ बात करना चाहिए, उनके साथ उनको कंपेनियनशिप देना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी नीड टू अलाउ द पर्सन टू इन्वॉल्व इन हॉबीज एंड अदर मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। उसके बाद भी हम अगर देखें कि वो कंसर्न्स लिंगर कर रहे हैं, वो नहीं सो पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, उदास रह रहा है, बहुत अपसेट हो रहा है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है, फिर भी अननेसेसरली ही इज़ फीलिंग सो एंशियस, सो स्ट्रेस्ड आउट एंड नर्वस, इन दैट केस you should consult a physician, a mental health physician that time. Thank you, doctor. You have thrown a lot of light on mental health and awareness, and trust me, all the viewers have got a lot of inputs. Now, and we face every time, as I said, कि हम लोग सब face करते हैं, Exactly. मैंने किया है, सब ने किया है, शायद वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। Nobody in life, I think, would have not faced it. Exactly. 5 minutes के लिए किया होगा, but ज़रूर किया होगा. So, any takeaways for the viewers you want to? So the only takeaway that I would like to share with all the viewers is that treat your mind or love your mind the way you love your body, because mental wellness is very important as your physical wellness. और मायूस होना, अपसेट होना, एक इंसान का डिप्रेशन डायग्नोस होना या कोई भी मेंटल डिस्ट्रेस डायग्नोस होना has nothing to do with madness, the so-called term we use. Yes. Please come out of that. ये stigma high time we need to remove from our country, especially because western countries में तो awareness बहुत है, हमारे country में भी बहुत awareness है, but still we have a long way to go as mental health professionals कि this has nothing to do with any sort of stigma. जितना आप अपने शरीर के बारे में, शरीर को प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान आपके माइंड को रखिए। अगर मायूस है, स्ट्रेस्ड हैं, प्लीज कम अप एंड शेयर विद अदर्स, बिकॉज द मोर यू share with others, the more you externalize your stress, the more you start working on your mental well-being, because no health is possible without mental health. So please love your mind the way you love your body. Thank you so much, doctor. Thank you for giving your precious time. Thank you and so much. making everybody aware about it. Thank you so much for it. And I would say, give me time to yourself. It is very important, and let everybody give their me time. A certain me time in a day is also important. Thank you so much.